Hello friends, so welcome to my YouTube channel which is Future Officers. So previously I was informed that I will start a series of PYQ related to vocabs in CDS, CGL and other exams also. So today I will cover the first video in which I will cover this PYQ of CDS to 2024. So I will start this series in the reverse order. Like first I will cover CDS to 2024, then first 2024, then 2023, 22, 21, 20, 19, 18, just like that. So I will cover all the vocab section like antonyms, synonyms, and idioms related things, and whatever the vocabs are present in the exam. So I will cover all the vocab. So first, I'm going to start this series to 2024, which is done recently. So the first question is the vocabulary part. So we can see that in this question we have to find opposite means antonyms. So the first question is the leader views were equivocal on the contentious issue. So what is the meaning of equivocal? Equivocal means unclear, something which is not visible clearly. Like if I talk about the synonyms of equivocal, so there is obscure, ambiguous, vague, and so many. Something opaque. We know that. So the antonyms of this word is clear, because equivocal means unclear. So the antonyms is clear. Second question. The authorities interacted with a group of mutinous students. Mutinous means something which is someone who is disobedient. Means कोई इंसान है जो किसी बात को नहीं मानता है, मतलब किसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसका मीन क्या होता है? डिसोबीडियंट. सो अनरूली मीन्स जो फॉलो नहीं करता है. कंटेन्यूमेशियस विच इज़ रूड, एट्रोशियस, someone who is very cruel, rude, and talk in the rude behavior. CDTS, which is also said disobedient. So the antonyms is obedient. Okay. Third question. His behavior was quite belligerent. Belligerent means someone who is a kind of enemy, like who have the feelings of we can say कोई दुश्मनी है, जैसे किसी को किसी से बदला लेना होता है, तो समथिंग कोई दुश्मन टाइप का हेटेड काइंड ऑफ थिंग. सो bellicose is also similar to the belligerent. Antagonist means someone who is hated of some person. Combative means kind of war, like you know that combat wars. So these things. Amiable means something friendly kind of thing, friendly, cordial. So amiable is the antonyms of belligerent. Coming to the fourth question, he was effusive in his phrase. So effusive means showing gratitude. Like if someone help us, so we show our gratitude to some other person. In a simple way we can say, अगर किसी ने हमारी हेल्प करी है तो हम क्या सोचते हैं कि हम उसको थैंक यू बोलें. So this is kind of effusive. Exuberant means full of energy. Profuse means happy. Voluble means talkative. And reticent means someone who is introvert. वो कुछ नहीं कहता, मतलब शांत टाइप का रहता है, अपने आप में ही घुला मिला रहता है. So reticent is the antonym of this effusive word. Coming to the fifth, he is often accused of being iniquitous in his conduct. So iniquitous means अधर्म. अधर्म means something which is not pious, जो हमें नहीं करना चाहिए. अधर्म मीन्स क्या होता है? जैसे कोई गलत चीज़ है तो वो उस टाइप से अधर्म होता है, बेकार चीज़. सो प्रीपोस्टरस मीन्स प्रीपोस्टरस वी कैन से समथिंग विच इज़ बेकार काइंड ऑफ थिंग. अगली and rupturous is its synonyms. Execrable means bad or unpleasant. Virtuous and revolting means
रिवॉल्ट करना, जैसे कभी कोई रिवॉल्यूशन करते हैं, लड़ाई हो जाती है तो रिवॉल्टिंग। वर्चुअस मीन्स होता है धर्मी, जैसे कह सकते हैं ना हम कि हमने कोई अच्छा काम किया है, तो वर्चुअस। वर्चुअस मीन्स क्या होता है, हमारे गुण टाइप से। सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से वर्चुअस. So I completed all the antonyms of CDST 2024, and coming to the next section, which is synonyms. So this is the part of synonyms. In the exam there is not the mention of synonyms somewhere, like in this they mention nearest in meaning to the underlined word. So sometimes it can happen कि कोई भी word है वो एकदम प्रॉपर सिनोनिम नहीं दे रहा होता है, तो हमें उसका नियरेस्ट मीनिंग में भी जाना पड़ता है. ओके, सो फर्स्ट द विलेज हैडमैन वॉज ओल्ड एंड कैंटाकरस. कैंटाकरस मीन्स क्या होता है, जो अपने आप में मतलब एक तरीके से फ्यूरियस रहता है, एंग्री काइंड ऑफ थिंग, मतलब एक तरीके से सेटल नहीं होता, उसके मतलब मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, एंशियस टाइप से. सो कैंटाकरस मीन्स वो होता है. पोलाइट, पोलाइट जो अच्छे से बात करता है, बिल्कुल पेशेंस वाला है. इल टेम्पर्ड, मतलब उसे इल टेम्पर्ड मीन्स उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो उसका विचारों का मतलब समथिंग वी कैन से थिंकिंग उसकी थोड़ी प्रॉपर वे में नहीं होगी. वीक, वीक मीन्स वी नो. सीरियस, समवन हु इज़ वेरी सीरियस. सो द सिनोनिम ऑफ कैंटाकरस इज इल टेम्पर्ड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Psychologically, problems among the youth can be attributed to the pernicious influence of the internet. What is the meaning of pernicious? Pernicious means something which is harmful or dangerous or risky kind of things. So the synonyms of pernicious is harmful. Okay. Next question is, our teacher told us not to be verbose while writing. Exaggerate, short, informal, succinct. सो वर्बोज मीन्स क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में. तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एग्जैगरेट. मतलब हम वी नो दैट ना कि कभी कभार कुछ लोग बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है एग्जैगरेट करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रिजोनेंट वॉइस. रिजोनेंट मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज़ इन अ डीपर मैनर. कोई चीज़ है बिल्कुल एकदम डीप मैनर में जाती है, जैसे हमने फिज़िक्स में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी सुनी होगी, तो एक तरीके से एक प्रॉपर साइकिल में जाएगी. तो इसका सिनोनिम क्या होगा, डीप. नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर फेड अप विथ हिज डॉल्टिश बिहेवियर. डॉल्टिश मीन्स क्या होता है, फुलिश, मूर्ख. तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इम्बेसिलिक. इम्बेसिलिक मीन्स होता है मूर्ख. ओके, तो आई कंप्लीटेड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, but some of their more vocabs kind of things, so I will cover that things also. Anarchism. Anarchism means there is no government system. Pristine. Pristine means something which is in original condition, like कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल कंडीशंस में होते हैं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वी कैन से प्रिस्टाइन. इनॉर्मिटी. इनॉर्मिटी मीन्स होता है सीरियस, लाइक हमने कोई क्राइम कर दिया, पाप कर दिया, तो एक तरीके से काइंड ऑफ सीरियस, वी कैन कोरिलेटेड इट. क्वाइटिडियन. क्वाइटिडियन मीन्स होता है समथिंग विच इज़ डेली, जो डेली होती है, मतलब हम उस चीज़ के फॉन्ड ऑफ होते हैं, इंटरेस्ट होता है ना हमारा, तो उसको हम कह सकते हैं डेली काइंड ऑफ थिंग. इमोलेट. इमोलेट मीन्स होता है सेक्रीफाइस करना किसी चीज़ में, बाय बर्निंग ऑल्सो. नेक्स्ट इज मिनिमाइज. इट इज़ नॉट क्लियर, सो मिनिमाइज. मिनिमाइज मीन्स क्या होता है, समथिंग विच वी वॉन्ट टू रिड्यूस. डिफाई. डिफाई मीन्स होता है गॉड. ओके. रकंट्योर, मे बी आई एम नॉट प्रॉपरली प्रोनाउंस, सो विच मीन्स इज गुड इन स्टोरी टेलिंग, समवन हु इज़ गुड इन स्टोरी टेलिंग. इमेस्क्यूलेट. इमेस्क्यूलेट मीन्स किसी चीज़ को वीक करना. ओके. परटर्वेशन मीन्स डिस्टर्ब करना, जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है, मेंटल एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस. सो दिस इज
So I completed all the vocab section of Series 2 2024. Remaining part is idioms and phrases. So idioms and phrases. A watched pot never boils. इसका मतलब क्या होता है? A watched pot never boils. इसका मतलब होता है डेस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन. मतलब हम कभी एक तरीके से होपलेस हो जाते हैं, तो उस टाइम में क्या टाइम हमारा निकल जाता है एक तरीके से. मे बी आई एम नॉट क्लियर इट्स अबाउट. आई विल क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट इट. Look to your laurels. Its meaning is to make an extra effort to secure one's position. Look to your laurels का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट देना किसी इंसान की पोजीशन को सिक्योर करने के लिए. ओके. प्ले डेविल्स एडवोकेट. टू ट्राई टू डिफीट समवन बाय ट्रिकिंग दैम. मतलब हम किसी को हराना चाहते हैं, वो भी किसी तरीके से किसी चालाकी से. मतलब हम उसके लिए गलत भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं. Next, be in the same mood. Its meaning is to be in the same unpleasant situation. It is very simple. Tilt at windmills. Its meaning is to waste time dealing with enemies and problems that do not exist. मतलब इसमें क्या होता है, हम उस चीज़ पर टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स और दुश्मन एग्जिस्ट ही नहीं करते. ओके, क्लियर? So I covered all the synonyms and antonyms, idioms and phrases of Series 2 2024. So in the next video I will cover Series 1 2024 PYQ section, and other than PYQ section I also told to cover some vocabs of the Hindu. So the first vocab is majestic. मैजेस्टिक मीन्स प्रभावशाली. समथिंग विच जो अपना प्रभाव हाल किसी चीज़ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्ट देता है. सिनोनिम्स इज एक्सल्टेड, ऑगस्ट एंड ग्रेट. अगर कोई चीज़ ग्रेट होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो किसी चीज़ पर अपना इफेक्ट आराम से डाल सकती है. कर्टेलमेंट. कर्टेलमेंट मीन्स होता है रिडक्शन करना, कट बैक करना. मतलब किसी चीज़ को मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना. इनकन्क्लूसिव. इनकन्क्लूसिव मीन्स इनडिसिसिव, इनडेफिनेट. मीन्स वी कैन से कि अभी कोई भी मतलब किसी भी कंक्लूज़न पे कोई नहीं पहुंचा, मतलब वो अभी डेफिनेट नहीं है, प्रॉपर हमें उसका मतलब नहीं पता है. रिजम्पशन. रिजम्पशन मीन्स रीस्टार्ट, रीओपनिंग, दोबारा से स्टार्ट करना. ड्विंडल. ड्विंडल इज सिंपल. ड्विंडल मीन्स डिमिनिश एंड डिक्रीज. अनविटिंग. अनविटिंग मीन्स अनइंटेंशनल. ओके, मतलब हमने कोई भी चीज़ जैसे हमने इंटेंशनली नहीं की, जैसे हमने किसी के साथ कुछ हो गया, गलती से हुआ, बट हमने इंटेंशनली नहीं किया ना, तो उसका मीन्स होता है अनइंटेंशनल. शेल्व. शेल्व मीन्स होता है टालना, मतलब डिले करना. वी कैन ऑल्सो से ले असाइड एंड डिले. वी कैन से पोस्टपोन. ओके. नेक्स्ट इज विजिलेंट. विजिलेंट मीन्स जागरूक, watchful, someone who is very alert, so we can use that word, vigilant. Exalt. Exalt means someone who is very glorify, extol, praise, जिसको हम बहुत ज़्यादा someone who is very respected, और तो उसके कारण हम उनसे शाबाशी देते हैं, एडमायर कर देते हैं. सो इट इज़ सिमिलर टू मैजेस्टिक, बिकॉज मैजेस्टिक मीन्स प्रभावशाली. अगर कोई अच्छा काम करेगा तो ग्लोरीफाई हो गई और प्रभावशाली भी होगा. ट्रॉमेटिक. ट्रॉमेटिक मीन्स होता है डिस्टर्बिंग, शॉकिंग. जैसे हमने सुना है ना, उसको ट्रॉमा हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, तो मतलब वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब टाइप से हो जाता है. कभी कभार हो जाता है ना, जैसे डिमोटिवेशन हो जाता है किसी को, तो वो थोड़ा ट्रॉमा हो जाता है उस टाइम पर. वी कैन ऑल्सो से पर्टर्ब. ओके. नेक्स्ट, वॉन्ट. वॉन्ट मीन्स होता है प्रेज, अक्लेम, किसी को प्रेज करना. अनसीमली, इम्प्रॉपर, इनएप्रोप्रिएट, मतलब वो सही नहीं है, अभी इनएप्रोप्रिएट थिंग है. कैटार्सिस. कैटार्सिस मीन्स होता है पर्जिंग एंड प्यूरिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ का हमें प्यूरिफिकेशन करना है. इन्फेंटाइल. इन्फेंटाइल मीन्स होता है चाइल्डिश, बेबीइश
एंड इमेच्योर, समवन हु इज़ इमेच्योर, अभी वो प्रॉपर तरीके से बड़ा नहीं हुआ है। कहते हैं ना चाइल्डिश है वो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो कुछ भी करते रहते हैं, तो बिकॉज दे आर चाइल्डिश काइंड, सो दैट्स वाई इन्फेंटाइल। इनग्रेन्ड मीन्स होता है एंट्रेंच करना, स्टैब्लिश करना, फिक्स करना, किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से फिक्स करना। जैसे कोई वी कैन ऑल्सो यूज़ इन द रिलेशन, लाइक किसी में थोड़ा लड़ाई टाइप से हो गई तो हम उसे फिक्स कर सकते हैं, इनग्रेन्ड। सेलर मीन्स होता है बेसमेंट, वॉल्ट, क्रेप, किसी का बेसमेंट होता है ना वो। ओमिनियस मीन्स होता है अमंगल, थ्रीटनिंग। ओमिनियस अमंगल मीन्स जो एक तरीके से शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, इम्पायस। ओके। मेलाइस मीन्स होता है अनहैप्पीनेस, रेस्टलेसनेस, समवन हु इज़ नॉट हैप्पी, हु इज़ इम्पेशेंट। ओके। एंशियस। स्ट्राइकन मीन्स ट्रबल्ड, अफेक्टेड, वो परेशान है, अफ्लिक्टेड है किसी चीज़। ऑस्टेंशिबल मीन्स होता है अपेरेंट, सीमिंग, आउटवर्ड। ऑस्टेंशिबल मीन्स होता है जो चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिख रही है, अपेरेंट है, ऑब्वियस है। रिट्रैक्ट मीन्स होता है वापस लाना, टेक बैक एंड अनसी। गेस्टली मीन्स होता है टेरिबल, भयंकर, डरावना काइंड, गेस्टली। स्कार्सली मीन्स होता है रेयरली, कठिनता से, सेल्डमली, इनफ्रिक्वेंटली। दीज वर्ड ऑल्सो कम्स इन स्पॉटिंग एरर्स ऑल्सो, ये आ सकते हैं स्पॉटिंग एरर में, इनका काफ़ी यूज़ हो जाता है कभी कभार। सो आई completed today's the Hindu vocabs. So if you like my video, so please like and subscribe, and I will try to cover more and more things for your preparation, and whatever I have contained I will definitely share with you. Okay, thank you, and happy Diwali also, because कल दिवाली है, so in advance happy Diwali, and अच्छे से सेलिब्रेट करना, and try to reduce the use of crackers, because you know how they are creating lot of pollution, because अभी हम जानते हैं कितना सारा pollution हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, अर्थ पर। तो अगर हम धीरे धीरे भी रिड्यूस करेंगे उसको, तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो अपने आप कम होता जाएगा। ओके, बाय बाय।